Hello students, welcome to this lecture. In this lecture we will discuss a very important article that is the step potential. इसमें बच्चों हमारे पास दो केस हैं, एक तो एनर्जी लेस देन द स्टेप हाइट एंड दूसरा एनर्जी ग्रेटर देन स्टेप हाइट। तो इस लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे एनर्जी विच इज लेस देन स्टेप हाइट। Suppose the step height is V naught and the particle having the energy which is less than V naught. So इसको बच्चों हम diagrammatically कैसे बनाएंगे? Suppose this is a region, this is x equal to 0. Suppose this is a step having the height which is V naught and x लेस देन 0 को हम एक रीजन डिफाइन कर देते हैं. दिस इज रीजन नंबर 1 एंड फॉर x ग्रेटर देन 0 वी हैव द रीजन नंबर 2. फॉर द रीजन नंबर 1 द पार्टिकल इज फ्री, सो द पोटेंशियल हियर इज 0 एंड व्हाट फॉर द रीजन नंबर 2 द पोटेंशियल इज V naught. Clear? So we have the two reasons. And in the reason number 1, as I already mentioned in the statement, that the energy is less than V naught. So we have this statement. So in this case, what we will have, a particle is there which is moving towards x equal to 0, that is called as the incident particle, incident wave, and after striking with the step, it may come back. So we will have the reflected component or it may penetrate in the region number 2. So we have the transmitted component. So हम चेक करेंगे बच्चों हमारे पास reflected component आएगा या फिर हमारे पास transmitted component आएगा. Accordingly we will check what is the situation. But अगर हम इसको classically देखें, according to classical mechanics, अगर हम देखें what will happen, so if we are talking for the particle having the mass m, having energy E which is less than V naught which is the height of the step, तो क्या होगा, पार्टिकल आएगा towards x equal to 0 and it will strike with the step, and if its energy is less than the height of the step, then it will definitely come back and it will not enter into the region number 2. Means particle की हमेशा क्या होगी बच्चों, रिफ्लेक्शन ही होगी, इसकी ट्रांसमिशन नहीं होगी, क्योंकि जो पार्टिकल है उसके पास एनर्जी, जो स्टेप है उसके जो बैरियर है उससे एनर्जी इसकी कम है. बट अगर हम देखें क्वांटम मैकेनिकली, क्वांटम मैकेनिकल व्यू, सो हम क्वांटम मैकेनिकली इसको देखेंगे स्टूडेंट्स क्या होगा. अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक अगर हमें इसको देखना है तो वी विल राइट हियर दी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. सो वी हैव रिटन वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. So which is d2 psi by dx square plus 2m by h cross square e minus v psi equal to 0. तो बच्चों श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल. यहाँ पे हमारे पास दो रीजंस बन रहे हैं. फॉर द रीजन नंबर 1 हमारे पास डिफरेंट तरह का पोटेंशियल है और रीजन नंबर 2 के लिए हमारे पास डिफरेंट तरह का पोटेंशियल है. सो सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा फॉर रीजन 1 what is the potential, potential is 0, and if I am writing for reason 2, potential is how much, which is the height of the step, so the potential is V naught. तो मैं ये जो इक्वेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसको अलग से दो तरह के कंपोनेंट्स के लिखूंगा. फॉर रीजन नंबर 1
I will put here the value for V which is equal to 0, and for the reason number 2 I will put here the value for Vx which is equal to V naught. Clear? So सबसे पहले हम इसको लिखेंगे for reason number 1. For reason 1 में हमारे पास क्या है, Vx हमारा क्या है 0. If Vx is 0, then the previous equation which we have written, it will become d2 psi by dx square plus 2m by h cross square e minus v, and now it will 0 into psi which is equal to 0. Clear? So यहाँ पे हमारे पास क्या बना स्टूडेंट्स, d2 psi by dx square plus 2m e by h क्रॉस स्क्वायर psi इक्वल टू 0. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारे पास है 2m e by h क्रॉस स्क्वायर, इसको हम एक कांस्टेंट डिफाइन कर देंगे विच इज k1 स्क्वायर. नाउ 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, मास ऑफ अ पार्टिकल इज अ पॉजिटिव नंबर, एनर्जी इज पॉजिटिव फॉर द पार्टिकल, h क्रॉस स्क्वायर अगेन अ पॉजिटिव नंबर. सो दिस टर्म बिकम्स k1 square, the square of a number which is a positive value. Clear? तो हम इसको बच्चों रिप्लेस कर देंगे. कैसे रिप्लेस कर देंगे, लिख देंगे k1 square. तो इक्वेशन बनेगी d2 psi by dx square plus k1 square into psi which is equal to 0. तो हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हमने अब सॉल्व करना है. इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, ये आपने सॉल्व की होंगी इन योर मैथमेटिक्स. तो इसका मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट सोल्यूशन लिखता हूँ. इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ. ये जो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसको बच्चों लिखते हैं बड़ी डी स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से डी स्क्वायर आएगा माइनस k1 स्क्वायर, या इसको लिखा जा सकता है आयटा स्क्वायर k1 स्क्वायर. तो यहाँ पे d के जो रूट आएगा, एक तो आएगा प्लस, एक आएगा माइनस आयटा k1. तो इसका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हम मैथमेटिक्स में लिखते हैं दैट इज a e रेज्ड पावर फर्स्ट रूट विच इज आयटा k1x प्लस b e रेज्ड पावर सेकेंड रूट विच इज माइनस आयटा k1x. तो ये सोल्यूशन हो गया for the reason number 1. Therefore I am writing here the psi 1. Psi 1 means this is the solution which is applicable for the reason number 1. तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में फिर से लिख लेता हूं. सो psi 1 स्टूडेंट्स हमारा क्या आया, a e रेज्ड पावर आइटा k1x प्लस b e रेज्ड पावर माइनस आइटा k1x. ये जो e रेज्ड पावर आइटा k1x है और दूसरे वाला e रेज्ड पावर माइनस आइटा k1x है, these are both the traveling waves. This is called as the incident wave. This is called as the incident wave, and this is called as the reflected wave. इसको स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, जो पॉजिटिव वाला कंपोनेंट होगा उसको हमने लिखना है जो वेव आगे की तरफ जा रही है. आगे की तरफ जाना मतलब इंसिडेंट वेव, एंड जो नेगेटिव वाला कंपोनेंट होगा उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वेव. मींस वो पीछे की डायरेक्शन में आ रही है, x इज इक्वल टू 0 से पीछे की तरफ मींस रिफ्लेक्टेड वेव. क्लियर? सो नाउ फॉर द रीजन नंबर 2, अब हम रीजन नंबर 2 के लिए इक्वेशन बनाएंगे. रीजन नंबर 2 के लिए अगर हम इक्वेशन बनाएं तो वहां पे हमारा Vx क्या है, दैट इज V नॉट विच वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इन दिस स्लाइड. सो फॉर द रीजन नंबर 2 द Vx इज हाउ मच, दिस इज V नॉट, एंड हमारी जो एनर्जी है for the particle is less than V naught. This is the given condition in the statement. तो इसको स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे,
तो अब हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या बनेगी, d2 psi by dx square plus 2m by h cross square e minus v naught into psi is equal to 0। और कंडीशन क्या चल रही है, E is less than V naught। If E is less than V naught, then E minus V naught is less than 0। तो ये टर्म हमारी लेस देन 0 होगी। अगर ये टर्म हमारी लेस देन 0 होगी तो ये वाली सारी टर्म क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, नेगेटिव बन जाएगी, क्योंकि E माइनस वी नॉट लेस देन 0 है तो ये नेगेटिव नंबर हो गया। और अब इसको हम 2m h क्रॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल बिकम द नेगेटिव वैल्यू। तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे तो क्या बनेगा देखते हैं, d2 psi बाई dx स्क्वायर माइनस 2m बाई h क्रॉस स्क्वायर v नॉट माइनस e इंटू साई इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने जो ये नेगेटिव वैल्यू है ब्रैकेट में से बाहर निकाल दी, तो E नेगेटिव बन गया और V नॉट हमारा पॉजिटिव बन गया। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये वाली टर्म है। अब इस टर्म को अगर हम देखें 2m h क्रॉस स्क्वायर V नॉट माइनस E, नाउ इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू बिकॉज E माइनस वी नॉट नेगेटिव है बट V नॉट माइनस E हमारा पॉजिटिव नंबर है। तो इसको हम एक और कांस्टेंट के साथ लिख लेंगे विच इज कॉल्ड एज K2 स्क्वायर। तो ये सारी जो इक्वेशन है इसको हमने नाम दे दिया K2 स्क्वायर। तो हमारी ये फॉर्मुलेशन क्या बनी, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको लिख के दिखाता हूं। तो फॉर्मुलेशन स्टूडेंट्स हमारी बनेगी d2 psi by dx square minus k2 square into psi is equal to 0। तो अब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम उसी तरीके से। सो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को हम कैपिटल डी स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर विच इज 0। सो डी स्क्वायर विच इज k2 स्क्वायर, सो d की हमारी वैल्यू आई प्लस माइनस K2। क्लियर। तो इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, दिस इज c e रेज्ड पावर फर्स्ट रूट विच इज k2x प्लस d e रेज्ड पावर k2x। अब जो psi2 है, psi2 हमारा स्टार्ट होगा फ्रॉम x इक्वल टू 0 से एंड ये कहां तक जाएगा, इट टेंड्स टू x इक्वल टू इंफिनिटी। तो ये कहां तक है, जो रीजन नंबर 2 है इसकी बाउंड्री कहां तक है, अप टू x इक्वल टू इंफिनिटी। मीन्स रीजन 2 एक्सटेंड्स अप टू x इक्वल टू इंफिनिटी। बट जो हमारी एक कंडीशन है साई की, वेव फंक्शन की, साई मस्ट बी फाइनाइट। बट अगर हमने ये सारा वेव फंक्शन कंसीडर कर लिया तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक पॉजिटिव कंपोनेंट, एक नेगेटिव वाला कंपोनेंट। अगर x इक्वल टू मैं प्लस इन्फिनिटी रख दूंगा तो ये मेरा फर्स्ट जो टर्म है ये क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर मुझे ये फंक्शन psi2 को फाइनाइट रखना है तो इन ऑर्डर टू keep the value of psi2 finite, we suppose that c is 0। तो c को स्टूडेंट्स हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो हमारा psi2 क्या बना, psi2 हमारा बनेगा d e रेज्ड पावर k2x। सो psi2 हमारा क्या बन गया, इट बिकम्स d e रेज्ड पावर माइनस k2x। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में फिर से दोनों जो मेरे वेव फंक्शन है लिख लेता हूं।
psi1 एंड psi2। psi1 मेरा आया था स्टूडेंट्स a e रेस्ट पावर आइटा k1x प्लस b e रेस्ट पावर माइनस आइटा k1x। psi2 हमारा क्या आया d e रेस्ट पावर माइनस k2x। ये जो a b एंड d हैं, these are the unknown constants। ये स्टूडेंट्स हमारे क्या हैं अननोन कॉन्स्टेंट्स। और हमारे पास ये जो अननोन कॉन्स्टेंट्स हैं इनकी वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग द बाउंड्री कंडीशंस। और अगर हम देखें इस प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट डिफाइंड है, दिस पॉइंट इज x इक्वल टू 0। मीन्स हमारे पास यहां पे दो तरह की बाउंड्री कंडीशंस हैं। तो बाउंड्री कंडीशंस मैं लिख देता हूं कौन सी हैं, बाउंड्री कंडीशंस। सो हम यहां पे स्टूडेंट्स दो बाउंड्री कंडीशंस यूज करेंगे। एक क्या होगी, साई इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0 एंड दूसरी बाउंड्री कंडीशन हम क्या लगाएंगे, डी साई बाई डी एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहां पे अननोन कॉन्स्टेंट्स 3 हैं और बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास 2 हैं। तो अगर कभी ऐसा हो जाए बाउंड्री कंडीशंस कम हो एंड अननोन कॉन्स्टेंट्स ज्यादा हो, तो हमें क्या करेंगे, कोई दो जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हम तीसरे कांस्टेंट की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हम यहां पे क्या करेंगे, सभी जो हमारे पास a, b एंड d तीन अननोन कांस्टेंट्स हैं उनमें से हम b एंड d को इन टर्म्स ऑफ a रिप्रेजेंट कर देंगे। तो सबसे पहले मैं कंडीशन अप्लाई करूंगा, साई इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। अगर स्टूडेंट्स हम देखें फॉर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 के लेफ्ट हैंड साइड है रीजन नंबर 1 एंड x इक्वल टू 0 के राइट हैंड साइड है रीजन नंबर 2। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट, दिस इज द कंडीशन फॉर द कॉन्टिन्यूटी। तो फिर मैं यहां पे कॉन्टिन्यूस की कंडीशन कैसे लिखूंगा, साई इज कॉन्टिन्यूस, दिस इज माई फर्स्ट कंडीशन एट x इक्वल टू 0। तो इसको कैसे लिखूंगा, साई 1 एट x इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू साई 2 एट x इक्वल टू 0। ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। तो साई 1 में x इक्वल टू 0 रख दो, साई 1 में अगर आप x इक्वल टू 0 रखोगे तो ये बन जाएगा a प्लस b, और राइट हैंड साइड साई 2 में x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा सिर्फ d। तो हमारे पास ये एक कंडीशन आ गई विच इज द इक्वेशन नंबर 1, a प्लस b विच इज इक्वल टू d। और अब हम क्या करेंगे, करली साई बाई करली x इज कॉन्टिन्यूस, कहां पे बच्चों, अगेन एट x इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, करली साई 1 बाई करली x एट x इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू करली साई 2 बाई करली x एट x इक्वल टू 0। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। पहले डेरिवेटिव करेंगे a e रेस्ट पर आइटा k1x, तो डेरिवेटिव करने से आइटा k1 आगे आ जाएगा। सेकेंड टर्म में माइनस आइटा k1 आगे आ जाएगा, बाकी टर्म सेम रहेगी। और जब उसमें हम x इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक्सपोनेंशियल टर्म 1 बन जाएगी। तो बनेगा क्या, बनेगा हमारे पास आइटा k1 a माइनस आइटा k1 b विच इज इक्वल टू, अब साइड 2 का जब डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस k2 बाहर आ जाएगा, तो उसमें बनेगा माइनस k2 d। तो अब इसके अंदर अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, आइटा k1 बाहर आ जाएगा, a माइनस b विच इज माइनस k2 d। तो इसको बच्चों अगर हम सॉल्व करके देखें, इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें
तो माइनस K2 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस K2 को हम लिख सकते हैं आईटा स्क्वायर। क्लियर, इट कैन बी रिटन एज आईटा स्क्वायर K2D। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी क्या, अगर मैं दोनों तरफ से आईटा आईटा कैंसिल कर दूं तो बनेगा A माइनस B विच इज इक्वल टू आईटा K2 बाई K1D। तो ये मेरी 2 नंबर इक्वेशन बन गई। अब इसको मैं फिर से नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेता हूं। एक इक्वेशन हमारी बनी स्टूडेंट्स A प्लस B इज सिंपली D। सेकेंड बनी A माइनस B इज आईटा K2 बाई K1 इंटू D। अब हमने क्या करना है, सभी जो हमारे कांस्टेंट्स हैं B एंड D उनको इन टर्म्स ऑफ A लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो एडिंग 1 एंड 2 तो बनेगा क्या, 2A विच इज इक्वल टू D कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस आईटा K2 बाई K1। तो इसको हम क्या लिखेंगे, D K1 प्लस आईटा K2 डिवाइडेड बाई K1। तो हमारा D क्या आया, D आया 2A K1 डिवाइडेड बाई K1 प्लस आईटा K2। तो ये हमारा स्टूडेंट्स क्या आ गया, दिस इज D। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 2B विच इज इक्वल टू D 1 माइनस आईटा K2 बाई K1। क्लियर, तो ये बनेगा 2B विच इज इक्वल टू D की भी वैल्यू स्टूडेंट्स हम रख देते हैं 2A K1 डिवाइडेड बाई K1 प्लस आईटा K2 इंटू ये बनेगा K1 माइनस आईटा K2 डिवाइडेड बाई K1। 2 से 2 कैंसल, K1 से K1 कैंसल। तो हमारा B क्या बना, B बना A K1 माइनस आईटा K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस आईटा K2। मैं स्टूडेंट्स एक बार फिर से लिख देता हूं। D हमारा मैंने ऑलरेडी लिख दिया, तो B हमारा क्या बन गया, B बना A K1 माइनस आईटा K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस आईटा K2। दिस इज व्हाट, दिस इज दी B और ये हमारा है D। तो अगर हम psi1 एंड psi2 को लिखें, psi1 हमारा क्या था, A e रेस्ट पावर आईटा K1x प्लस B e रेस्ट पावर माइनस आईटा K1x, और psi2 हमारा क्या था, दिस इज D e रेस्ट पावर माइनस K2x। और अगर मैं सारी वैल्यूज B एंड D की जो वैल्यूज हैं उनको रख दूं इन टर्म्स ऑफ A, तो मेरा बनेगा क्या, तो बनेगा A e रेस्ट पावर आईटा K1x प्लस, अभी मैंने पिछली स्लाइड में B की वैल्यू लिखी, B की वैल्यू है A K1 माइनस आईटा K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस आईटा K2। तो इसकी वैल्यू मैं रख देता हूं, तो ये बनेगी A K1 माइनस आईटा K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस आईटा K2 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस आईटा K1x। और साथ में हमारे पास D की वैल्यू नीचे रखनी है। D की वैल्यू आई थी 2A K1 प्लस आईटा K2, तो D की वैल्यू आएगी 2A K1 डिवाइडेड बाई K1 प्लस आईटा K2 इंटू स्टूडेंट्स माइनस K2x। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मुलेशंस ऐसी बनी। ये जो हमारी फॉर्मुलेशन है, दिस इज द इंसिडेंट वेव, दिस इज व्हाट, दिस इज द इंसिडेंट वेव, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द
रिफ्लेक्टेड वेव। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट वन, दिस थर्ड वन, दिस इज द ट्रांसमिटेड component. Actually, what is the psi2? Psi2 is the component in the region number 2. And what is the entered component in the region number 2? That is called as the transmitted component. So this is basically the transmitted portion. We want to check what happens to the problem when the energy is less than step height. Clear? So now we will define here one component which is called as the reflection coefficient. So we will check whether all the components are transmitted or reflected, or we have the partial reflection or the partial transmission. So we will check firstly here. So what is the meaning for the reflection coefficient? It is defined by R. So what is the R? It is defined as the probability of the wave function reflected, so which is represented by psi star, psi, and what components? Reflected components, to the probability density of the incident portion. So we again have psi star psi, and this is what? Incident. So we define here the reflection coefficient is what? It is simply defined as the ratio of the reflected probability density to the incident probability density. So this is the reflected wave, this is the reflected wave, and this is the incident wave. So I will write down, this is psi incident and this is what? Psi reflected. So I will put the values for psi reflected and psi incident. So firstly psi reflected star, तो यहाँ पे क्या आएगा? A star, यहाँ पे हमारे पास K1 माइनस आइटा K2 है, तो बन जाएगा K1 प्लस आइटा K2 डिवाइडेड बाई K1 minus iota K2 into e raised power iota K1x into psi reflected. So as such term आ जाएगी K1 minus iota K2 divided by K1 plus iota K2 into e raised power minus iota K1x divided by psi incident star. This is the psi incident star, तो ये बन जाएगा A star e raised power minus iota K1x into A e raised power iota K1x. और अगर हम टर्म्स देखें, क्या चीज कैंसिल हो रही है? ये सारी वाली टर्म यहां से कैंसिल होगी, ये टर्म इसके साथ कैंसिल होगी, e raised power iota K1x ये नीचे से कैंसिल हो गया, नेगेटिव वाली टर्म नेगेटिव वाली टर्म से कैंसिल होगी। सो हमारे पास बचा क्या? एट द लास्ट हमारे पास बचा R विच इज इक्वल टू A स्टार A डिवाइडेड बाई A स्टार A। बेसिकली ये भी कैंसिल हो गए, तो अल्टीमेटली वी गेट R इज 1, मीन्स 100% रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट्स अगर कोई पार्टिकल को हम इंसिडेंट करवा दें टूवर्ड्स अ स्टेप एंड द एनर्जी ऑफ द particle is less than the height of the step, then there will be 100% reflection. जैसे हमने बात की अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स कि अगर पार्टिकल की एनर्जी स्टेप हाइट से कम है तो 100% रिफ्लेक्शन होगा, तो उसको हमने क्वांटम मैकेनिकली भी यही प्रूफ कर दिया दैट 100% रिफ्लेक्शन ही होगा। क्लियर? बट अगर हम देखें साई 2 को, साई 2 भी हमारा जीरो नहीं था, साई 2 हमारा है डी ई रेस्ट पावर K2x। ये हमारा जो फॉर्मुलेशन है, दिस इज नॉट द फॉर्मुलेशन फॉर अ वेव। जो वेव का फॉर्मुलेशन होता है
उसमें स्टूडेंट्स हमारे पास आइटा की टर्म होती है, ई रेस्ट पर आइटा वाली टर्म्स होती हैं। तो ये हमारे पास जो कंपोनेंट है, अगर हम एट एक्स इक्वल टू देखें, this is again psi 2 is not equal to 0, means we have the finite probability for entering the particle into the region number 2, but eventually जो particle है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना बहुत है, इसको आप ध्यान से पढ़ो। तो अगर आपको कोई डाउट है स्टूडेंट्स, तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। Thanks for watching. Please like, subscribe and share with your friends.